Today we discuss about the some numerical based on the relation on the sets. In previous video we discussed about the what is the relation and some problems based on it. What is the reflexive, what is the transitive, what is the symmetric, and also what is the antisymmetric relation. And after that we discuss about the relation equivalence relation. On this, at base of that definition we saw the some problem. Today we also are going to discuss about the some problem based on it. Let us suppose Z1 and Z2 be Z1 and Z2 be two complex number and relation R is defined as Z1 relation Z2 implies that Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2 equal to a real number. Yeah, pure real number also you can say. Okay. So we have need to then show that R is reflexive, so that R is equivalence relation. Show that R is equivalence relation. So now we have to show that the function is transitive, the relation is symmetric, reflexive, and transitive. Then first Z relation Z implies that Z minus Z upon Z plus Z, that gives us 0 upon 2Z, that is 0, that is totally real number है, 0 real number होता है. Therefore R is reflexive relation. ओके, या कह सकते हैं स्वतुल्य संबंध. क्या है? स्वतुल्य संबंध है. सेकंड, Z1 relation Z2 implies that Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2 a real number. So with the help of that we also can say Z2 minus Z1 upon Z2 plus Z1 a real number. Past in both numbers are real number. That implies that Z2 minus Z1 upon Z2 plus Z1 is a real number. Okay, then it can be say Z2 relation Z1. Z1 Z2 तो Z1 minus Z2 और Z2 Z1 यानी Z2 minus Z1. तो we can say thus Z1 relation Z2 implies that Z2 relation Z1. Therefore R is symmetric relation. R is symmetric relation. यानी R क्या है? तुल्यता संबंध है. तो हमने दिखाया बेटा कि R क्या है? रिफ्लेक्सिव है. यानी R is रिफ्लेक्सिव रिलेशन. R स्वतुल्य संबंध है. R सममित रिलेशन है. अब ये हम नीड टू शो दैट R is transitive. क्या दिखाना हमको? R is transitive. तो we are going to prove that R is transitive. Let Z1, Z2 and Z3 be belong to complex number. Okay. Let
Z1, Z2, Z3 भी complex number. Therefore Z1 equal to x1 plus iy1, Z2 equal to x2 plus iy2, Z3 equal to x3 plus iy3. You discussed in a previous class of the first year in a complex number. Now Z1 relation Z2, Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2, that is Z1 minus Z2 means beta x1 plus i1 minus x2 minus iy2 upon x1 plus y1 x2 plus iy2. Okay, now x1 minus x2 real plus I common y1 minus y2, x1 plus x2 रियल प्लस I छूट गया है I कॉमन y1 प्लस y2. ओके, अब हम इसे रेशनलाइज करना चाहते हैं x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 माइनस I y1 प्लस y2, और यहाँ भी वही करेंगे बेटा x1 plus x2. हम डिनोमिनेटर को we are going to make a real number. Okay, here is a complex number I y1 plus y2. Now multiply x1 square minus x2 square minus I x1 minus x2 y1 plus y2. ओके, इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आई कॉमन लिया है आई बाद में लिखेंगे x1 प्लस x2 y1 माइनस y2 प्लस माइनस आई स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस y2. ओके, अपॉन here beta a plus b, a minus b, that is a square minus b square. अब देखो क्या मिल रहा है x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस आई x1 से मल्टीप्लाई करें x1 y1 minus x1 y2, y2 multiply x2 y1 and x2 y2, फिर माइनस साइन माइनस x1 y1 and minus x1 y2 minus minus plus x2 y1 plus x2 y2, और that is I square plus 1 y1 square minus y2 whole divided by that gives us a square minus b square. Okay, that is x1 x2 whole square y1 plus y2 whole square. Why? I square is minus 1. So now we see that the x1 y1 is cancel out, x2 y2 also cancel to each other. तो जो रिमेन्स है बेटा उसे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे यहाँ. अब यहाँ आपको देखना है तो हम रियल को करें x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 होल स्क्वायर
एंड y1 प्लस y2 होल स्क्वायर। ये रियल है, ये रियल है, एक साथ कर दे, ओके बाय दिस, और ये इमेजिनरी है, प्लस आई। देखो बेटा x2y1 टू टाइम्स है, और यहाँ x1 y2 भी टू टाइम्स है, 4 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 होल स्क्वायर एंड y1 प्लस y2 होल स्क्वायर, ओके। अब favor real या only real if the coefficient of I equal to 0। ये प्योर रियल कब होगा? जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हट जाए तब ये रियल हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर कब हटेगा? जब आई का कोएफिशिएंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। और y का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 2x2 y1 माइनस 2x1 y2 अपान x1 प्लस x2 होल स्क्वायर एंड y1 प्लस y2 होल स्क्वायर। 0 2 कॉमन ले लो, x2 y1 माइनस x1 y2 इक्वल टू 0, 2 भी 0 हो जाएगा, x2 y1 x1 y2। वी कैन से दैट y1 by y2 x1 by x2। तो वी कैन से कि Z1 रिलेशन Z2 implies that x1 upon x2 equal to y1 upon y2। अगर Z2 रिलेशन Z3 होता प्यारे, क्या होता? Z2 रिलेशन Z3 तो Z2 में x2 होता है और Z3 में x3 होता है, Z3 में Z2 में y2 होता है, और इसमें क्या होता है? इसमें होता है y2 y3। तो अब हम चाहे इसको मैं कह सकता हूं x1 अपान y1 इक्वल टू x2 अपान y2, और इसको मैं कह सकता हूं x2 अपान y2 इक्वल टू x3 अपान y3। कह सकते हैं ना, y1 को नीचे ले ऐसे लेंगे, ये बहुत इक्वल है, ये इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे। x1 रिलेशन x1 अपान y1 x3 अपान y2। x1 क्या है बेटा? Z1 है, x3 क्या है? Z3 है ना, है। तो Z1 रिलेशन Z3, तो हमने क्या देखा? Z1 रिलेशन Z2, Z2 रिलेशन Z3, तो Z3 रिलेशन Z1 भी है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं बेटा? R is imply that R is transitive relation। तो we say that R is reflexive, R is symmetric and R is transitive, therefore R is equivalence relation। तो R क्या है? तुल्यता संबंध। कौन सा संबंध है? तुल्यता संबंध, ओके। तो ये थे न्यूमेरिकल कुछ। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको और कराता हूं, देखिएगा। ये आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी होगी। इफ यू वांट टू नो अबाउट इट, यू हैव नीड टू प्रैक्टिस। इफ R and S be two relation on A cross A, R is subset of A cross A and S subset of A cross A। R and S be two relation also R and S is R equivalence relation। यानी R और S क्या है बेटा? तुल्यता संबंध है।
तो हमने कहता है देन शो दैट दिखाइए कि आर यूनियन एस एंड आर इंटरसेक्शन एस आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें दिखाना है आर यूनियन एस और इंटरसेक्शन एस भी क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो फॉर दिस वी कैन से दैट, क्या मैं कह सकता हूं एक्स रिलेशन वाई, ऐसे कह सकता हूं एक्स वाई बिलोंग टू आर implied that yx belong to R, xy belong to, या आप ए बी कह लो, एक्स जेड कह लो, जो भी बिलोंग टू एस, वाई एक्स बिलोंग टू एस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब एक्स रिलेशन वाई बिलोंग टू आर, वाई रिलेशन बिलोंग टू इतना, क्यों, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध में सम्मित होता है। तो एक्स रिलेशन वाई तो वाई रिलेशन एक्स होना चाहिए, एक्स रिलेशन एस वाई रिलेशन एस, क्यों, एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है, तो सम्मित होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांसिटिव होगा। हियर इज द सिमेट्रिक, इट इज आल्सो सिमेट्रिक। तो वी कैन से xy belong to R union S implied that yx also belong to R union S। अगर R और S में तो यूनियन में भी होना चाहिए। तो हमने देखा कि एक्स वाई आर यूनियन एस है तो वाई एक्स भी आर यूनियन एस है, दोनों को मिला दिया बेटा, यहाँ भी दोनों को ज्वाइन किया। तो मैं कह सकता हूँ इम्प्लाइड दैट आर यूनियन एस इज is symmetric relation. Next, x relation x implied that x relation x belong to R, implies that x belong to R. Why? R is equivalence relation. तो संबंध स्वतुल्य होगा, x relation x belong to S implies that x belong to S। उलट दो, एग्जिस्ट करेगा, R इज S इज इक्विवेलेंट रिलेशन। या आप इसे ना लिखे, आप ये कह सकते हैं x रिलेशन x R एग्जिस्ट, S रिलेशन x एग्जिस्ट बिकॉज R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैं कह सकता हूं x रिलेशन x बिलोंग टू R यूनियन S। यूनियन मतलब क्या होता है, दोनों को मिला देना, ज्वाइन टू बोथ। तो x रिलेशन x भी आइनेस में इंप्लाइड दैट इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, reflexive relation. We have need to show that then x y now third x y belong to R, y z belong to R, implied that x z belong to R, why R is इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसे ट्रांसिटिव होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ऐसा जरूर होगा तभी ट्रांसिटिव होगा। तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन तो ट्रांसिटिव है, तो हम ये लिख सकते हैं। सिमिलरली एक्स रिलेशन वाई बिलोंग टू एस, एक्स रिलेशन वाई रिलेशन जेड belong to R, implied that
एक्स जेड बिलोंग टू, सॉरी एस लेके चल रहे हैं, रीजन वही, यस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आप कह सकते हैं कि एक्स रिलेशन वाई बिलोंग टू आर यूनियन एस, वाई जेड बिलोंग टू आर यूनियन एस। अगर इसके इन दोनों मिला दो यूनियन मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि एक्स जेड भी यूनियन में होगा। तो हमने देखा कि आर यूनियन एस क्या है बेटा, इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि आर यूनियन एस क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यू हैव नोट टू, कोई लोग ऐसा भी कर सकते हैं बेटा कि हमने एक्स वाई माना, यहां आप वाई जेड मान लो, यूनियन करोगे दोनों मिल जाएंगे, तो कर सकते हो। यहाँ आप लोग एक्स वाई हमने सपोज किया है, आप यहाँ ए बी सपोज कर लो, फिर यूनियन करोगे आ जाएगा। एक्स वाई सपोज किया, आप ए सपोज कर लो, तभी आ जाएगा। आप अदर सपोज कर सकते हो। हमने एक ही चीज को सपोज कर ले, तो मुझे इंटरसेक्शन भी दिखाना है बेटा। तो इंटरसेक्शन दिखाना है तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां यूनियन है वहां इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन है, जहां जहां यूनियन है वहां क्या कर दो, इंटरसेक्शन कर दो। यहां भी वही, जहां जहां यूनियन है वहां इंटरसेक्शन, दोनों कॉमन है, कॉमन को इंटरसेक्शन बोला जाता है। आप यहाँ इंटरसेक्शन कह दो। ऐसे आप यहां भी इंटरसेक्शन कर लो, ऐसे लो, अब यहां भी इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो आप अगर यूनियन कर ले तो इंटरसेक्शन कर लो। तो ये था न्यूमेरिकल बेटा, टू बेस ऑन द रिलेशन एंड relation of equivalence relation. Okay, today we discuss now here that what is the inverse relation, what is the inverse relation, inverse relation क्या है? For example, that is A and B2 set, R is relation A to B. Okay, so the relation then defined B to A, represented by R inverse, known as the inverse relation. It is inverse relation. A to B हो जाए, यानी R सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो इनवर्स क्या है, सबसेट ऑफ B क्रॉस A। तो R को A का क्या बोलते हैं, इनवर्स कहते हैं। डेफिनेशन क्या है बेटा, इफ टू नॉन एम्प्टी सेट A and B R is the relation to AB, the relation that defined B to A known as the inverse relation of R, that is represented by R inverse। यदि A और B दो समुच्चय हो, अरिक्त समुच्चय हो, उन पर एक संबंध R परिभाषित हो A से B में, तो वो संबंध जो B से A में परिभाषित होता है R का प्रतिलोम संबंध कहलाता है। R का क्या कहलाता है, प्रतिलोम संबंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल R A B, फॉर एवरी A बिलोंग टू A एंड B बिलोंग टू B, तो R इनवर्स B A, फॉर एवरी A बिलोंग टू A एंड B बिलोंग टू। जैसे मैंने आपको एक रिलेशन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल R इक्वल हमने कहा 1 2 2 3 3 4, इनवर्स निकालो। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है बेटा, यू हैव नीड टू इंटरचेंज। ओके, 2 1 3 2 4 3। ओके, दैट इज द इनवर्स। तो कुछ नहीं करना, एक्स रिलेशन वाई हो तो वाई रिलेशन एक्स हो। तो ऐसे संबंधों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलोम संबंध कहते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन,
composition of two relation. Let us suppose first of all you have need to understand here please. That is the A set A, that is the set B, okay, and that is the set C. ठीक, अब x इस पे डिफाइंड है, r इज डिफाइंड a to b and s इज डिफाइंड b to c, यानी हमको ऐसे मिला है बेटा, ये a है, ये b है, ये c, a रिलेशन b है एंड b रिलेशन c। तो ऐसा रिलेशन जो इन पे अडॉप्ट हो जाता है, समझ रहे हैं, इन पे जो अडॉप्ट होता है रिलेशन उसे हम कहते हैं ASOR C, ए कंपोजिशन R, एस कंपोजिशन R है। ठीक, ऐसे लेते बेटा, ए बी बिलोंग टू R, बी सी बिलोंग टू S, implied that AC belong to S composition R। ठीक है, तो ये डिफिनीशन है, यानी यदि ए बी सी तीन नॉन एम्प्टी सेट हो और ए से बी में रिलेशन आर डिफाइंड हो, बी से सी में रिलेशन एस डिफाइंड हो, तो वो रिलेशन जो ए से सी में डिफाइंड होता है वो दैट इज नोन एज द कंपोजिशन ऑफ द टू रिलेशन, तब इसे हम कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन कहते हैं। ओके, फिर से इफ ए बी सी आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट एंड आर एंड एस आर रिस्पेक्टिवली relation between A and B and B and C, then the relation then adopt A to C, that is known as the composition of the two relation to given relation and that defined like it, इस प्रकार डिफाइंड है। तो ऐसे भी कह सकते हो बेटा, इसको हम ऐसे शॉर्टकट में कह सकते हैं SOR AC देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होगा, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू बी, ए बिलोंग टू ए एंड सी बिलोंग टू सी, ये होना चाहिए। अगर बी नहीं है तो ए सी मिलेगा ही नहीं। देखो ए बी बी सी, बी ड्रॉप हो गया, ए सी मिल गया। अगर आपसे कहे 1-2 रिलेशन आर एंड 2-3 रिलेशन एस, देन 2-2 मिल रहा है तो 1-3 बिलोंग टू आर कंपोजिशन एस कंपोजिशन आर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस कंपोजिशन आर कहते हैं। मिडिल वाला ड्रॉप कर दिया जाता है, इसको दे दो। ठीक, तो ये था कंपोजिशन ऑफ रिलेशन एंड द थ्योरम इज आर एस कंपोजिशन आर इनवर्स इक्वल टू आर कंपोजिशन एस इनवर्स। Turn it, read it, and next video we discuss about it, हम इसको प्रूव भी करेंगे and then we discuss about the function। Have a nice day। I have that you have need to study at home and respect your elders, that's all।